Hello guys, welcome to my all friends. In this video lecture, we are talking about that biochemical separation technique. So various biochemical separation techniques are useful for that different purposes. But in this video lecture, we are talking about that ion exchange chromatography. ओके सो आयन एक्सचेंज मीन्स वर्ड से ही आपको पता चल रहा है ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आयन के हिसाब से कुछ चेंज हो रहा होगा. ओके सो आप अच्छे से सोच रहे हैं कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इट इज वन टाइप ऑफ दैट different chromatography as compared to the normal chromatography. Here we are separate the molecules based on their net surface charge, okay, which is useful for the protein purification, water treatment, as well as in ion removal. So basically उसका principle क्या है? So based on that reversible interactions between the charged molecules which are found in that sample and oppositely charged groups in the stationary phase. ओके सो आपका जो भी सैम्पल है उसके अंदर मान लीजिए कि आपका सैम्पल है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन से भरा हुआ है, और उस प्रोटीन के अंदर हमें पता है कि प्रोटीन्स विच आर मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड्स, एंड दीज अमाइनो एसिड्स हैविंग द सम ऑफ द charges on the surface. Some are that positive, some are the negative. So my sample containing the positive charge amino acids. Okay, so it can only separated out by the help of a negatively charged stationary phase. Okay, so हमें दो फेस पता है. जब हम क्रोमेटोग्राफी आती है ना तब हमारे माइंड में दो वर्ड तो आने ही चाहिए, स्टेशनरी फेज एज वेल एज मोबाइल फेज. स्टेशनरी फेज ऐसा फेज है कि जो हमेशा स्टेटिक फेज में रहेगा, और मोबाइल फेज यानी कि वो मूव करता रहेगा. ओके सो प्रिंसिपल उसका बेसिकली इतना है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर चार्ज मॉलिक्यूल्स जो है ना वो बाइंड करेगा ऑपोजिटली चार्ज रेजिन इन द स्टेशनरी फेज. ओके हमारा जो भी मॉलिक्यूल होगा लाइक दैट मेरा पॉजिटिव है तो रेजिन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. ओके एज वेल एज इल्यूशन विच इज अकर बाय ऑल्टरिंग द आयनिक स्ट्रेंथ एज वेल एज द pH. Second different component is that here some are that ionizable functional groups are used in the beads. One is that cation exchanger, second one is that anion exchanger. Cation exchanger means that यहाँ पर हम cations को क्या करने वाले, कैटायंस को एक्सचेंज करवाने वाले हैं. सो हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा नेगेटिवली चार्ज रेजिन. और अगर हम एनायन एक्सचेंजर यानी कि एनायंस को हम सेपरेट करवाने वाले हैं, यानी कि जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो उसके लिए हमें चाहिएगा स्टेशनरी फेज के अंदर पॉजिटिव चार्ज. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज दैट बफर. बफर आप कैसा बनाते हो, उसकी कैसी pH है, उसकी आयनिक स्ट्रेंथ कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर इल्यूशन के अंदर कैसा प्रोटीन आएगा, उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी. So let us start the types of ion exchange chromatography. The one is that cation exchange chromatography and second one is that anion exchange chromatography. Cation, here cation means the positive charge sample which can only separated by the help of negatively charged containing stationary phase, okay, which binds positively charged molecules, the CM cellulose or SP cephorose. And whenever we are talking about the anion exchange chromatography, their example is that diethyl aminoethyl and Q cephorose. Materials we are using the resin, mainly made up by that polystyrene based or agarose based beads. Some other functional groups are also found. बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप्स तो होते ही हैं, लेकिन उसके सिवा भी हो सकता है, लाइक दैट सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड क्वाटरनी अमोनियम ग्रुप. ओके एंड द मोबाइल फेज आर दैट द बफर. Okay, the buffers are triacetyl phosphate buffer and citrate buffer which adjusts the ionic strength as well as the pH. Now the procedure, the first procedure is that equilibration. कोई भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो, वो फिर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हो या फिर साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, कोई भी क्रोमेटोग्राफी के अंदर फर्स्ट स्टेप होता है इक्विलिब्रेशन. Equilibration is a very important step before you are loading the sample. Okay,
इक्विलिब्रेशन बफर भी अलग होता है, ओके। तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, लिटरेचर रिव्यू करके या फिर कोई भी ये बुकलेट में से, या फिर जो भी आप क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो भी कंपनी के आप यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर भी इक्विलिब्रेशन बफर बनाने की कुछ ना कुछ मैन्युअल्स के अंदर आपको टिप्स बताई जाती है कि आप यही बफर आप यूज़ कर सकते हो, दूसरे कोई भी बफर आप यूज़ नहीं कर सकते, तो वो पहले आपको रीड करनी पड़ेगी। देन एंड देन आफ्टर इक्विलिब्रेशन के हो जाने के बाद क्या करते हैं, हम सैम्पल लोडिंग करते हैं। तो सैम्पल लोडिंग के अंदर भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कितने अमाउंट में आप सैम्पल लोड करेंगे, एज वेल एज कौन सा सैम्पल लोड कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते हो, ओके। वो सारी बातें आपको याद रखनी है। आफ्टर द सैम्पल लोडिंग क्या होगा, इंक्यूबेशन पीरियड होगा, यानी कि 1 आवर तक हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सैंपल है उसको, ये जो सारे रेजिन के बिट्स दिख रहे हैं ना आपको, उसके साथ बाइंडिंग होने के लिए उसको छोड़ देंगे, ओके। जैसे ही वो बाइंडिंग हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, हम ये जो कॉलम का जो नीचे वाला जो है ना बटन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक टाइप की कैप होती है, तो उस कैप को हम खोल देंगे। जैसे हम इसको रिमूव करते हैं ना, अनबाउंड जितने भी प्रोटीन्स हो गए वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ओके। तो अनबाउंड प्रोटीन या फिर जो हमारे नॉन टारगेटेड प्रोटीन्स हैं वो निकल जाएंगे, वो वॉशिंग सॉल्यूशन में आ जाएंगे। जबकि हमारा जो टारगेटेड प्रोटीन है वो अभी तक रेजिन के साथ बाइंड रहेगा, ओके। जैसे हम इल्यूशन बफर डालेंगे तभी जाकर वो इल्यूशन बफर में आ जाएगा, ओके। इल्यूशन हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, रीजनरेशन करना है, यानी कि ये क्रोमेटोग्राफी है उसको फिर से पानी से अच्छे से वॉश करना है, एज वेल एज कई क्रोमेटोग्राफी के अंदर उसको 20% इथेनॉल से वॉश किया जाता है, या फिर आप एब्सोल्यूट इथेनॉल या फिर 70% इथेनॉल से आपको वॉश करके उसको फर्दर यूज़ के लिए रख देना है, ओके। So now what is the applications? Ion exchange chromatography we are using for that protein purification as well as a enzyme और एंटीबॉडी प्यूरिफिकेशन के लिए मेनली ये सारी टेक्निक के लिए यूज़ किया जाता है। एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड प्यूरिफिकेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक द DNA, RNA, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के सेपरेशन के लिए भी, एज वेल एज वेस्ट वाटर के अंदर जो भी मैग्नीशियम और एज वेल एज हाई मेटल्स की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव आउट करने के लिए भी हम ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। सो इसका एडवांटेजेस ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, रिजोल्यूशन उसका दूसरी क्रोमेटोग्राफी की कंपैरिजन में अच्छा आता है, ओके। कोस्ट इफेक्टिव है, ओके। एज वेल एज आप अच्छे से अगर आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर लेते हो तो लैब से लेकर आप इंडस्ट्रियल स्केल तक उसको ले जा सकते हो, ओके। एंड द लिमिटेशंस आर ऑल्सो फाउंड, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टू चेंज इन pH। अगर आपके pH का जो बफर है वो अच्छे से आपने नहीं बनाया है, या फिर उसकी pH वेरी हो गई है, तो आपका जो भी प्रोटीन आने वाला था ना इल्यूशन के अंदर वो कम आएगा या फिर आएगा ही नहीं, तो ऐसा हो सकता है, ओके। रिक्वायर्स ऑप्टिमाइजेशन फॉर ईच मॉलिक्यूल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी स्टेप को पहले ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, उसको इंडस्ट्रियल यानी कि लार्ज स्केल तक उसको ले जा सकते हैं। आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। तो आज हमने देखा उसकी प्रोसीजर, उसके क्या क्या मटीरियल्स यूज होते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसके क्या क्या 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, उसका प्रिंसिपल देखा, ओके। आई होप you are clearly understood about the ion exchange chromatography. Please like this video and subscribe my channel. And if you have any doubts, please let me know in that comment section.